Good morning, students. So here I am back again with this second part of computer network topic. So in previous video, you have learned about that computer network. Okay. So पहले आपने देखा था कि what is network and how it is useful in our daily life. Okay. So you have learned about as much this in this PDF that what is network and what are the types of network based on the coverage area covered by that particular network. Okay, so there were the four main part like personal area network, local area network, metropolitan area network and wide area network. Okay, फिर हमने देखा था इसके ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन कि किस किस तरीके से ये एस्टेब्लिश होते हैं. ठीक है, फिर हमने देखा था उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर कि क्या क्या डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं, ये सब चीजें. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट क्या क्या होते थे. तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे की बातें. ठीक है, so what is server, we have learned about that what is server and what is client and workstation. Okay, so what is the mean of client? Client on the computer that request and receive service from the server to access and use the network resources. Okay, so that's mean is client. And what is server? The server are the configuration computer that manage the resources of a network. The network operating system is typically installed in a server, and so they give user access to network resources. Okay, so there are the computer which is responsible for the answering the request generated by the clients or workstations. Okay, so that's mean that that type of computer or that type of devices are like a server. Okay, फिर हमने देखा था आपके बाद में ट्रांसमिशन मीडिया. सो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया? द पर्टिकुलर मीडियम बाय विच वी कैन ट्रांसफर आवर डेटा और इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, फ्रॉम वन नोड टू अनदर. ओके, सो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ठीक है, so that type of medium is known as a transmission medium. Okay, so there were two type of transmission medium. One is guided and another one is unguided. So guided mean what? Whenever we connect two devices or two nodes with the help of any type of wire, so it is known as a guided media. Okay, and when we use the wireless technology like a Bluetooth, infrared or a, Wi-Fi or any satellite waves. Okay, so that's mean this medium is as known as a unguided medium. Okay, so ये सब चीजें थी यहाँ पर. फिर हमने देखा था कि what is connecting devices or what are the electronic devices which we use to establish our network. So there were different devices like router, bridge, hubs, repeater, gateway, switches and etc. Okay, so we will learn about all these devices in uh, upcoming videos. Okay, so now we start the next part of this PDF, this one. Okay, so we just learn about the hardware component of a network, and now we are discussing about that what are the software component of network. Okay, so first one is network operating system. So what is the network operating system? So network operating system is typically installed in the server and facilitate workstation in a network to share file, database, applications, and printer, etc. Okay, so there were operating system which is responsible for to handle all these type of tasks to what will be the request and how it will be respond by the server. ओके, सो ये जो पूरा सिनेरियो होता है बहुत सारे कंप्यूटर को एक जगह कनेक्ट करके उनको पर्टिकुलर मैनेज करना, ये सारी जो चीजें होती है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हैंडल की जाती है. ओके, सो ये था आपका जैसे कि इसका एग्जांपल है जैसे आप लोग विंडोज सर्वर है या फिर और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर नेटवर्क को हैंडल करने का काम करते हैं. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेन कंप्यूटर होता है और वहां से हम लोग विद दैट ट्रांसमिशन मीडिया हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो पूरा सिनेरियो को हैंडल करने के लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम लोग यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, so now protocol 2. Okay, so a protocol is a rule. So what is the mean of protocol? Basically
what is the basic meaning of protocol? A set of rule. Okay, तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल की, तो हम लोग बात करते हैं ए सेट ऑफ रूल। तो जब भी हम लोग पर्टिकुलर कुछ रूल होते हैं तो उसका एक सेट बना के हम लोग उसको प्रोटोकॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल हर हमारे पर्टिकुलर, जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो वो जो भी आप काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, एक इजी वे में हो जाएगा और एक सूटेबल तरीके से हो जाएगा। बट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स और पर्टिकुलर rules, okay, so it can be hard to do this particular things or task, okay। So यहाँ पे प्रोटोकॉल सूट क्या होता है? ये प्रोटोकॉल सूट इज अ रूल और गाइडलाइन, जस्ट लाइक बेसिक मीनिंग ऑफ प्रोटोकॉल, ओके, और गाइडलाइन फॉलो बाय ईच कंप्यूटर फॉर डेटा कम्युनिकेशन, ओके। सो अगर आप लोग कंप्यूटर से सॉरी नेटवर्क से कनेक्ट है आपका कंप्यूटर या फिर डिवाइस, ठीक है, तो यू हैव टू आल्सो फॉलो दैट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ओके। ओके, सो कैसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में और क्या क्या चीजें हैं जो आपको रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे साइन अप करोगे आप लोग, कैसे साइन इन करोगे, ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग नेटवर्क से, ठीक है, और नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद में भी हमको क्या चीजें हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंटिंग एनी टाइप ऑफ हैकिंग और एनी टाइप ऑफ मेलवेयर, ओके। सो ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए। सो इसी जो सेट ऑफ रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। So protocol suite is a set of related protocols that are laid down for computer networks. Okay, किस तरीके से कनेक्ट होगा, किस तरीके से नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, तो ये सब पूरे इसके एक रूल्स हैं, ठीक है, वन बाय वन, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, ओके। सो वन है, फर्स्ट वन इज OSI model, okay, open system interconnection, and second one is TCP IP model, okay। So here TCP IP is mean that transmission control protocol and internet protocol, okay। So these two are the basic model how we connect or how we establish a network, okay। ये है आपके बेसिक प्रोटोकॉल्स और रूल्स, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दीज हम लोग जो भी आप लोग आसपास में नेटवर्क देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, या फिर जो भी कहीं पे भी भले वो लैन है या मैन है या वैन है, ठीक है, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो या फिर किसी भी तरीके से कितना भी कवरेज एरिया वो कवर कर रहा हो, ये सब नेटवर्क इन मॉडल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है, ओके। सो नाउ वी आर learning about the network topologies, okay। So what is the meaning of topologies? बेसिक मीनिंग क्या होता है इसका? सबसे पहले तो देखो, हमको जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी एक नए वर्ड की या फिर किसी भी एक नई जो भी आपको सामने नया जो सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो फील्ड में उसको क्या मीनिंग है उसका वो पता करना है। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आप उसका बेसिक मीनिंग जाने, ठीक है। बेसिक मीनिंग अगर आपको पता रहेगा, फिर आप उसको एज इस कंप्यूटर फील्ड या फिर जो भी जिस फील्ड की भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको उस फील्ड में उसकी क्या डेफिनेशन है पर्टिकुलर वर्ड की, वो आपको याद रखने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नेटवर्क टोपोलॉजीज, ओके। सो टोपोलॉजी का मीन होता है जब आप किसी भी चीज को कनेक्ट करते हैं एक पैटर्न को, ठीक है। सो इट्स मीन लाइक अ पैटर्न, how we can connect devices to each other, okay। So depending on that pattern, this is known as a topology, okay। So topology क्या होता है, जिस पैटर्न में आप लोग चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, okay। So now the pattern of interconnection of node in a network is called topology, okay। So how we can connect the nodes of in a network, okay। What will be the pattern and what is the pattern that's why we are connecting that all devices or nodes to each other, okay। So किस पैटर्न में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं या सर्कुलर मोड में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई डिजाइन अलग कोई आपके पास में मैप है उसके हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज, ओके। So this layout also determine the manner in which information is exchanged within the network, okay। So this layout also determine the manner
इन विच द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद इन अ नेटवर्क। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी अगर आपने कनेक्ट किया सर्कुलर वे में, ओके, तो किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नोड से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन जाएगी, द शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, ठीक है, पाथ इजी वे, इजी पाथ क्या होगा उसका, ठीक है, तो वो सारी चीजें। So there were the so there are the different type of topologies. You can see here the different type of network topologies that can use to set up a network are bus topology, star topology, ring topology, tree topology, and hybrid topology. Okay, so just like its name, the topology and its pattern, how we can connect our computer or devices. Okay, so just like name, we can see the basic structure of this topologies like by their names. Okay, अगर बात करते हैं हम लोग बस टोपोलॉजी की, तो वहां पे जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वो भी एक तरीके से एक पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन से कनेक्ट होंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगर स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में भी क्या होगा, जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो एक पर्टिकुलर स्टार शेप्स में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा कि जो सारे कंप्यूटर क्या होंगे, एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा फोर्थ से, फोर्थ और वापस अगेन वन से कनेक्ट होगा। ठीक है, सो जस्ट लाइक अ सर्कल और जस्ट लाइक अ रिंग, दे विल बी कनेक्टेड टुगेदर। ओके, ट्री टोपोलॉजीज में एक ट्री जैसा शेप बन जाएगा आपका। ठीक है, तो शेप नहीं बनेगा, बस उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो नेटवर्क स्टेब्लिश है, वो उस तरीके से होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मतलब अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। ठीक है, सो हाइब्रिड का मतलब होता है द मिक्सअप ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज। ओके, सब चीज मैशअप हो जाएगी वहां पे, हर कंप्यूटर एक दूसरे से कंप्यूटर से कनेक्ट होगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो मिक्सअप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल द टोपोलॉजीज इज नोन एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजीज। ओके, अब देखते हैं वन बाय वन की होता क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट वन है बस टोपोलॉजी। ओके, so in this picture, you can see how we can connect a bus in bus topology a particular node or computer। ठीक है, so ये आप लोग देख रहे हैं सिंगल लाइन है। so इस सिंगल लाइन से पर्टिकुलर ये कंप्यूटर क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस कंप्यूटर को आपको चाहिए कि इस कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन आपको इस कंप्यूटर में अगर सेंड करनी है, तो क्या करोगे, आप लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजोगे और विद दैट पर्टिकुलर सिंगल लाइन और सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ से ये इस कंप्यूटर तक जाएगी। ठीक है, सो ये जो सिंगल लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो एक तरीके से केबल है जिससे हमने किसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपकी मेन लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये होता है सिनेरियो बस टोपोलॉजी का। ओके, सो देख लेते हैं क्या है। ए बस टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क in which all nodes are connected to a single cable। Okay, the cable to which the node connect is called backbone। Okay, so ये जो सिंगल केबल है आप इसको क्या बोल सकते हो, बैकबोन बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है टू द होल कनेक्टिविटी। ओके, सो जस्ट सपोज करो कि अगर ये चीज अगर यहाँ से कट गई, तो ये क्या होगा, ये दो कंप्यूटर अलग और ये बाकी के जो रिमेनिंग कंप्यूटर्स हैं वो ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो कनेक्टिविटी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। So that's why we call it a backbone। Okay, if the backbone is broken, the entire segment fail। Okay, so अब आप इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में आप लोग इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर पाओगे if the backbone is broken। Okay, so bus topology are relatively easy to install and don't require much cabling compared टू अल्टरनेटिव्स। ओके, सो अभी देखो क्या है कि ये एक तो इजी है टू स्टेब्लिश करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, आपको नोड्स चाहिए जो आपके पास होंगे, और अगर स्टेब्लिश करना है तो आपको एक सिंगल केबल की जरूरत होगी जिससे आप लोग बाकी सारे कंप्यूटर्स नोड्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। सो इट इज इजी टू स्टेब्लिश, बट अगर कोई चीज काम इजी हो रहा है तो वो काम आपका थोड़ा सा सिक्योर भी कम होगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी मींस क्या है यहाँ पे कि जस्ट सपोज इफ वी ब्रेक दैट पर्टिकुलर बैकबोन फ्रॉम एनी वेयर, जस्ट सपोज करो यहाँ से हमने कट कर दिया या यहाँ से कर दिया या फिर यहाँ से कर दिया। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कट कर दिया है, बाई चांस अगर गलती से कट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंप्यूटर क्या होगा कि कनेक्टिविटी में नहीं रहेगा और नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इस पर्टिकुलर फोर्थ वन कंप्यूटर से अगर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई डेटा अगर सेंड करना चाहते हैं, तो वो आपका ये इस बाकी के कंप्यूटर्स में नहीं जा पाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स यूज इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि कंप्यूटर्स का नंबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और वहां पर ये इस टाइप की जो एरर्स है उसको फाइंड आउट करने के में इजी रहता है। ठीक है, सो हम लोग ये जो बस टोपोलॉजी है वो अधिकतर कहाँ यूज में लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। ओके,
ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, सो इट इज सिंपल, रिलायबल एंड इजी टू यूज, ओके, एंड इजी टू एस्टेब्लिश ऑल्सो, तो ये हो जाएगा। फिर सेकंड है आपका, इट इज इजी टू एक्सटेंड एनी नंबर ऑफ कंप्यूटर कैन बी एडेड यूजिंग द कनेक्टर इन अ बस टोपोलॉजी। ओके, सो अगर जैसे सपोज करो कि हमको नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर अगर बढ़ाने, तो क्या करना है, वो सिंगल केबल को आगे बढ़ा के हम लोग कनेक्टर के हेल्प से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज इजी टू स्टेब्लिश और इट इज easy to extend also, it is less expensive देन अदर अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव तो बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें केवल आपका क्या यूज हुआ, एक सिंगल केबल यूज हुई है। ठीक है, तो सिंगल केबल से हम लोगों ने क्या किया, इसको यूज कर लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डिसएडवांटेज ऑफ bus topology। okay, so if the cable fail then the entire system fail to respond to the user। okay, so अगर बैकबोन ही आपकी अगर फेल हो गई है, ये सिंगल केबल, तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अगर बैकबोन आपकी अगर खत्म हो गई तो पूरा नेटवर्क खत्म। ठीक है, कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी, तो नेटवर्क रहेगा ही नहीं। Since the cable is one, fault finding and troubleshooting become very difficult। ठीक है, तो अगर सिंगल केबल होगी तो हमको क्या होगा कि फॉल्ट फाइंड करने में डिफिकल्टी होगी कि कनेक्टिविटी गई कहाँ से। ठीक है, अगर जैसे सपोज करो कि मिड से अगर यहाँ जैसे सपोज करो कि इस तरफ आपके और कंप्यूटर कनेक्टेड है और यहाँ पे भी आपके और कनेक्टेड कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से आपकी ये बैकबोन जो है वो ब्रेक हो गई, तो इस पार्ट में तो कनेक्टिविटी रहेगी और इस पार्ट में भी कनेक्टिविटी रहेगी एक दूसरे से। बट होगा क्या कि अगर जैसे सपोज करो कि राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में कनेक्टिविटी चाह रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन और वो जो रिक्वेस्ट क्या होगी, वो यहाँ पे नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो बैकबोन है आपका यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, so that's why to finding the damages, it's a tough task in this। okay, and data traffic high, third one है आपका data traffic। अब okay, तो देखो, just like your road, okay, road transmission, तो अगर जैसे सपोज करो कि अगर सिंगल लेन है और ट्रैफिक क्या बोलते हैं, व्हीकल्स नंबर सेम अगर हम लोग जैसे सपोज करो रखते हैं, तो एक सिंगल लेन में और एक डबल लेन में जो ट्रैफिक जो होगा वो हाई किस में होगा, सिंगल लेन में होगा। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं इसकी। तो अगर डेटा ट्रांसमिशन एक सिंगल केबल से हो रहा है, ठीक है, तो हर कंप्यूटर अपना डेटा ट्रांसमिशन करने की ट्राई करेगा, और वो अगर सिंगल केबल से हो रहा है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी क्या होगा, हाई होगा। ओके, सो जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस इन ऑल टाइप ऑफ like a metropolitan or wide area network. We are just using this one is in local area network, because in the local area network the coverage area also is small, and the number of computer, number of node is also in less number। okay, so that's why we using in this one। okay, अब बात करते हैं हम लोग नाउ रिंग टोपोलॉजी। ओके, सो बस टोपोलॉजी आपने देखा, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे। अब बात कर रहे हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी की। ओके, so what is the mean of ring topology? When we connect in network in just like a circular mode। okay, अभी यहाँ पे आप लोग 4 कंप्यूटर देख रहे हैं, हम लोग जरूरी नहीं 4, हम लोग 4 से ज्यादा भी कंप्यूटर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये एक आपको एक सिनेरियो बता रखा है, एक फिगर बता रखा है कि कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे वन दिस वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद दिस एंड दिस टू द दिस, एंड ये कनेक्ट वापस सर्कुलर कनेक्टिविटी कहाँ आ रही है, वापस इसके अंदर आ रही है। ठीक है, ये चीज है। सो ए रिंग टोपोलॉजी for local area network in which every devices has exactly two neighbor for the communicating purpose। okay, यहाँ पे क्या होगा कि हर जो डिवाइस होगा वो किससे कनेक्ट होगा, उसके टू नेबरिंग नोड से। ठीक है, तो अगर इस बात करते हैं इस कंप्यूटर की, सिंगल कंप्यूटर की इसकी, ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी। whenever we connect or whenever we establish a network in which all computers are connected to its two neighboring computer। okay, बस टोपोलॉजी में भी यही होगा कि वो नेबरिंग टू तो होगी, बट हर पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हो, क्योंकि इसमें जो लास्ट कंप्यूटर आप लोग ये जो देख रहे हैं, ठीक है, दिस वन कंप्यूटर, ये दिस वन इज नॉट कनेक्टेड टू दीज द बोथ नेबरिंग कंप्यूटर। ओके, ये केवल एक इसी से कनेक्ट है पास में। ठीक है, यहाँ पे इसके कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी कहाँ पे, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। ओके, सो दिस इज मीन ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। ओके,
लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम आएगा ये भी, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग कवरेज एरिया इसके अंदर, ठीक है। सो नाउ हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या है इसके एडवांटेजेस? सो द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन, ठीक है। अब क्या होगा कि एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, कि जो डेटा फ्लो होगा आपका वो आपका सर्कुलर मोड में आपका, जस्ट सपोज करो कि एंटी क्लॉक भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन, मतलब कि क्या होगा आपके जो डेटा ट्रैफिक है वो उसके चांसेस, जो कोलिजन होगा उसका चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, वो आपको कोलिज नहीं होगा। A network server is not needed to control network connectivity between each workstation, ठीक है। अब कनेक्टिविटी क्या होगा कि वैसे ही हर कंप्यूटर एक दूसरे से कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए क्या होगा कि उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो कंट्रोल करने का जो टास्क है वो मिनिमम हो जाएगा इसका। Okay, so now data transmission between the workstation is at high speed, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं हम लोग इस नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी की, तो डेटा ट्रांसमिशन जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सो जस्ट सपोज करो ये कंप्यूटर है, अगर हम लोग बात करते हैं बस टोपोलॉजी की, सो दिस कंप्यूटर this it's need to send any information or resources to this computer, okay। तो अभी ये क्या करेगा रिंग टोपोलॉजी में, तो यहाँ से फटाफट इसको इस वे से भेज देगा, ठीक है। बट अगर सपोज करो ये बस टोपोलॉजी होती तो यहाँ से ये कट होता, ठीक है, और ये एक सीधी लाइन में होता, तो ये होता फर्स्ट कंप्यूटर और ये होता आपका फोर्थ कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर फोर्थ कंप्यूटर को कोई भी रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक है, सो इट शुड बी sent by this way, okay। So fourth one to third and third to two and two to one. So this is the longest way in bus topology, okay। So if we are talking about, and if we are using the ring topology, so it can send by this way also, okay। So it connect with the shortest path, or it can send any type of information with the shortest way or shortest path। अब बात करते हैं नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अलग अगर जस्ट सपोज इफ यू वांट टू कनेक्ट अनदर another devices or any other devices to the network, so you can easily connect without giving any impact of uh, in the network, okay। So कोई impact उसका bad impact नहीं आएगा आपके network पे, you can easily connect other devices also, okay। So any, if you are, just suppose if you are have connected that five computer in a ring topology, and if you want to just connect six one computer also, so you can connect easily, okay, without affecting the previous one। नाउ बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। सो ऑल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन on the network, okay। So which can make it slower is star topology, okay। So all the data being transferred over a network must pass through, okay। तो क्या होगा कि जब बात करते हैं हम लोग ट्रांसफर स्पीड की, ठीक है, तो क्या होगा हर किसी एक कंप्यूटर से इसका मैसेज पास होगा, तो क्या होगा वो धीरे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हर कंप्यूटर, अगर जस्ट सपोज करो कि कनेक्टिविटी डायरेक्ट होती इस कंप्यूटर से लेके, ठीक है, दिस वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू दिस कंप्यूटर डायरेक्टली, ओके। तो डेटा ट्रांसमिशन अगर इसको यहाँ से करना होता तो ये डायरेक्ट कर लेता, बट अभी क्या होगा इसके अंदर ये घूम के जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी डेटा ट्रांसमिशन हल्का सा स्लो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। आगे जब हम लोग बात करेंगे किसी और कनेक्ट टोपोलॉजी की, तो उसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन भी होगा, ठीक है, ये चीज है। Okay, the entire network will be impacted by, sorry, if one computer, sorry, one computer or workstation shut down, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इस टोपोलॉजी की, ठीक है, तो अगर जस्ट सपोज करो कि एक वर्क स्टेशन और एक कंप्यूटर क्या होगा, अगर ये डैमेज हो गया या फिर किसी भी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी बस टोपोलॉजी में, ओके। और कनेक्टिविटी क्या होगी, अब क्या होगी, लूज हो जाएगी, है ना। तो आप अगर जस्ट सपोज करो इफ यू वांट टू सेंड दैट फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू फ्रॉम दिस कंप्यूटर टू दिस कंप्यूटर, ओके। सो आपको फिर पाथ क्या हो जाएगा, केवल एक यही पाथ हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो एंटायर नेटवर्क विल बी फेल्ड इफ द वन नोड इज disconnected। Now, third point is hardware needed to connect each workstation to the network is more expensive than the Ethernet card and hub and switches. Okay, so
The hardware needed to connect each workstation to the network more expensive than Ethernet. Okay, so क्या होगा कि हार्डवेयर जो भी नीड होगी इसकी, ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव हो गई होगा। तो बात करते हैं हम जब बस टोपोलॉजी की, तो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस जो था नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए वो सबसे लो था, बट वहाँ पे क्या था कि उसके डिसएडवांटेजेस भी काफी थे, ठीक है, कि कनेक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर एक ही सिंगल केबल होता है तो डेटा ट्रांसमिशन जो रेट है, स्पीड है, वो कम रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नेटवर्क की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस को हम लोग काउंट कर सकते हैं एज ए डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी की, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हर कंप्यूटर क्या है, एक पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ सर्वर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली। Okay, so in star topology is the topology for local area network in which all nodes are individually connected to a central connection point, like a or a switch. A star take more cable than like a bus, or but the benefit of is that if the cable fail, only one node will be brought out brought down, ठीक है। अब क्या होगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये कि स्टार टोपोलॉजी पे जो केबल है, वो जो क्या होता है, केबल जो है हम लोग को ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज कम्पेयर टू द बस टोपोलॉजी। बट फायदा क्या है यहाँ पे, बेनिफिट क्या है यहाँ पे, कि जस्ट सपोज करो कि एक अगर कंप्यूटर की कनेक्टिविटी लूज हुई या फिर एक केबल अगर ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, तो पूरे नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल वो एक नोड ही हट जाएगा, ठीक है, और पूरा नेटवर्क एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे जो कंप्यूटर है वो कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है आपके विद दैट पर्टिकुलर सिंगल सेंट्रल सर्वर। ओके, सिंगल सेंट्रल सर्वर। ओके, तो ये जो सेंटर में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, और ये सारे यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दिस नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी? So it is very reliable. Okay, reliable. If one cable or device fail, then the all other device will continue to the work. Okay, so अगर एक कंप्यूटर या एक नोड अगर खराब हो चुका है, ठीक है, तो आपके पूरे नेटवर्क पे कोई असर नहीं आएगा। You can easily connect or you can easily work on that particular network with the other computers. Okay, so it is high performing as no data collision can occur. Okay, so data collision नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो द वे ऑफ, या फिर हम लोग बात कर लो ट्रांसमिशन मीडिया की, तो या फिर ट्रांसमिशन द वे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो जो नेटवर्क कोलिजन होगा वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रैफिक भी क्या होगा, कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग से एक सिंगल केबल दे रखी है, ठीक है। ये चीज इजी टू एक्सटेंड, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर नेटवर्क, ठीक है, जस्ट सपोज करो कि इफ यू हैव 10 कंप्यूटर और 10 devices in that particular network, so if you want to connect 5 more devices to it, okay, तो आपको क्या करना होगा, बस कनेक्शन बनाना होगा फिर सीधा सर्वर से, तो विदाउट अफेक्टिंग द प्रीवियस नेटवर्क, ओके, एंड द नंबर ऑफ नोड्स which are connected to it, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग these, you can extend your network to the further। ओके, सो दिस way। तो ये थे आपके सारे एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ओके, सो व्हाट विल बी द मे बी द डिसएडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टोपोलॉजी? So it is expensive to install as this type of network use the most cable। Okay, तो अगर हम लोग बात करते हैं हर पर्टिकुलर नोड को अलग तरीके से कनेक्ट करने की, तो वहां पे हमको केबल की जरूरत होगी, ठीक है, और केबल की जरूरत होगी तो एक्सपेंसिव होगा ही होगा, ठीक है। सो इट इज एक्सपेंसिव as compared to the other networks। Okay, extra hardware required like a hub and switches। Okay, so हार्डवेयर एक्स्ट्रा आपको रिक्वायरमेंट होगी होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप लोग ये जो हब यूज देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे ये जो सेंट्रल जो डिवाइस है, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए, तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए आपको केबल्स की भी जरूरत होगी, ठीक है। सो अलग से डिवाइस और केबल्स की जरूरत होगी, तो ये आपका एज ए डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क कहला सकता है, ठीक है। So now third point is if a hub or switch fail, okay, so this is the main disadvantage of this particular network. If the hub and switch fail, the all devices connectivity connected to it, it will have no network connection। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कि अगर जस्ट ये सेंट्रल जो कनेक्शन है, यही पॉइंट अगर खराब हो गया, तो बाकी सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएंगे, ठीक है। दे विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन देम। ओके, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ करता था
कि अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो वो दो पार्ट में बढ़ जाता था नेटवर्क, ठीक है, बट यहाँ पे अगर सेंट्रल सर्वर अगर खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क क्या होगा आपका, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ओके, so now it's time to the tree topology. Okay, so a tree topology combines characteristics of linear bus and the star topology. It consists of group of star configured workstation connected to the linear bus backbone cable. Okay, so tree topology allow for expansion of an existing network and enable a school to configure a network to meet their needs. ओके, सो इस ट्री टोपोलॉजी में होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्टार टोपोलॉजी और आपका रिंग और ये जो बस टोपोलॉजी है, इसका एक कॉम्बिनेशन टाइप आपको ट्री टोपोलॉजी में देखने को मिलेगा। ओके, सो हियर you can connect this scenario is like a star topology. Okay, this scenario again just like a star topology. Okay, here you can see this scenario. Okay, and again this scenario is like a star topology, so you just need to connect these all small star topologies into a one form, so just like a tree. Okay, so whenever you connect your computer or your devices just like in this scenario, so it is known as a star topology. Okay, so इसी वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंबाइन कॉम्बिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एंड स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, सो ये आप लोग देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें भी क्या है, अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बसेस का यूज होगा, ठीक है, केबल्स का यूज होगा। ओके, एंड वी कैन कनेक्ट आल्सो बाय द दिस सेंट्रल डिवाइस आल्सो। ओके, सो दिस इज द स्टार टोपोलॉजी। क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे इसके यहाँ पे, तो ओके, सो फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस इज पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर द इंडिविजुअल सेगमेंट। ओके, सो इसके अंदर जो भी आपकी कनेक्टिविटी होगी वो क्या होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी। ठीक है, सो बाय दिस scenario we can say that if we have point to point connectivity with individual segment, so we can connect easily with each other segment. Okay, so just suppose कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसके बीच का जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट वे उसको मिल जाएगा। ठीक है, कोई उसको ट्रैफिक नहीं मिलेगा फॉर द डेटा कम्युनिकेशन, फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, सो ये इसका एक एडवांटेज है। Support by the several hardware and the software vendor. Okay, so it is supported by the several vendors and hardware also. ठीक है, so ये किसका एडवांटेज है, वैसे तो सभी में होता है ये। ठीक है, ये चीज। अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, ठीक है, ओवरऑल लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि एक तो केबल ज्यादा यूज होगी, ठीक है, और इसका क्या है, एक लिमिटेशंस होगा इसका। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ cable used. Okay, so this one, if the backbone line break the entire segment goes down. ठीक है, so backbone कौन सी होगी आपकी यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, so this one is backbone। जैसे कि आप लोग बस टोपोलॉजी में देख रहे थे, वो जो सिंगल केबल था जो कनेक्टेड था। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ okay, so this is like a backbone of this particular tree topologies. Okay, so अगर इस बैकबोन या फिर इस पर्टिकुलर केबल के अंदर कोई डैमेज आ जाता है या फिर ये ब्रेक हो जाती है कहीं से, तो एंटायर नेटवर्क विल बी गोज डाउन। ओके, सो नेटवर्क एज अ ट्री टोपोलॉजी फिर वहां पे वो काम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, so next more difficulty to the configure and the wire than the other topology. Okay, so just suppose if you have any breakdown in any wire or any damage in any wire. ठीक है, so here you are seeing that multiple wire is here. ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर वायर को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल वायर्स होंगे, तो उसके अंदर से एक पर्टिकुलर डैमेज्ड वायर को निकालना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ठीक है, so this is also known as a disadvantage of this topology. Okay, so वैसे तो हर एक टोपोलॉजी की अपनी एक नई एडवांटेजेस है और उसके साथ साथ में उसके कई एक डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, सो हम लोग कैसे यूज करेंगे इन सब टोपोलॉजी को, अकॉर्डिंग आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमको हमारे जो पर्टिकुलर नेटवर्क में जो हमारा पहली बात तो कि कौन सा नेटवर्क हमको यूज करना है या फिर हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क वी आर यूजिंग। Okay, so just like your LAN, MAN or any other network,
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि हमको टोपोलॉजी कौन सी इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, कि विच टोपोलॉजी वी इस्टेब्लिश इन टू टू कनेक्ट आर नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोगों को कौन सी टेपोलॉजी के थ्रू हमको हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टोपोलॉजी को चूज करते हैं, ठीक है। और उसके फिर उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। Now next is hybrid topology. Okay, so hybrid topology mean that it is the combination of two or more network topology. Okay, so here you can see the bus topology here. Okay, and you can see the ring topologies here, and then you can see like a star topologies here. Okay, so the combination of two or more network topology, it is known as a hybrid topology. Okay, so अब यहाँ पे इसके advantages और disadvantages क्या क्या होंगे? So just like your previous advantages of these topology and the disadvantages of these topology also apply here all, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का क्या होगा कि अगर जैसे सपोज करो कि ये सेंटर जो बैकबोन है ये अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई तो ये पार्ट तो एक हो जाएगा आपका, ये सिंगल पार्ट आपका एक हो जाएगा और ये रिमेनिंग पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। सो एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है, ठीक है। अगर ट्री टोपोलॉजी बात करते हैं रिंग की, तो रिंग अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई तो ये अलग। तो जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपके पहले वाले उसमें थे वो सारे अप्लाई यहाँ पे होंगे, ठीक है। बट यहाँ क्या होगा कि ये क्या है, एक तरीके से मैश हो गया है सब कुछ, ठीक है। जो जितनी भी आपने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, ठीक है, वो सारी टोपोलॉजीज को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ये वर्क कहाँ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जहां पे भी नेटवर्क या फिर नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक योर इफ द होल बिल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, या फिर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, सो वहां पे हम लोग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था वीडियो आपका इस टोपोलॉजी बेस, ठीक है, अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड द टोपोलॉजीज यूज्ड फॉर द एस्टेब्लिश नेटवर्क। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इस यूनिट के बारे में देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। सो गुड बाय।